Thanks to the director, sir, for sharing with us the realized knowledge, what we call the wisdom. When we read a book, it's the knowledge, but when we hear from a person who has realized it, gone through it, then it becomes wisdom and it has much more weight with it. So, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि साइंस हैज़ मेड एडवांसमेंट एंड मेकिंग एडवांसमेंट टू एन एक्सटेंड दैट वी कैन नॉट इमेजिन वेयर विल बी 5 years आफ्टर. जहाँ तक हम इमेजिन कर पाएंगे उससे भी हम कहीं और आगे होंगे, क्योंकि साइंस इस गति से आगे बढ़ रहा है आज. बट अबव ऑल वी सी दैट पीपल आर स्ट्रेस्ड, टेंस्ड, डिप्रेस्ड, and after everything we see that they are dissatisfied. That's the reason the cases of suicide, divorce and other things are increasing. So that is what we understand, that it's not the luxury which can give us the happiness, but it's the ultimate goal of life. It's the purpose of life that helps us take this life ahead, or what the sir was calling as this life is the greatest opportunity and we can have the best of this opportunity when we know some purpose of life. So that is what the greatest Indian heritage or the greatest Indian text, Srimad Bhagavatam, recommends, that tato dussangam utsrijya satsu sajjeta buddhiman sant evasi chinnanti मनोव्यासंग मुक्ति भी. एज द सर वॉज टेलिंग दैट जितने भी एक्वायर्ड थॉट्स हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं, दे एंटेंगल इन अ वे दैट उनको रिमूव करना बहुत कठिन हो जाता है. बट व्हेन वी हियर फ्रॉम द सेंटली पर्सन्स, इट एक्ट्स एज अ सीजर and it cuts away all our anxieties, the unwanted things. So we have the greatest of the opportunity today in the history of NIT Rourkela, that we are having for the first time His Grace Amog Leela sir with us. I'll briefly introduce about something about him. So sir, as such, His Grace Amog Leela sir doesn't need a formal introduction. Still, nevertheless, we will take this opportunity to introduce him to all of you. His Grace Amog Leela Prabhu is a monk, spiritual motivational speaker, TEDx speaker. Prabhuji has done his BTech in computer science, and he also worked as a project manager in HCL, Hewlett and Excel for 6 years in India as well as in USA. Prabhuji is a co-faculty at Indian Institute of Management IIM Ahmedabad for teaching principles, ethics and morality from Bhagavad Gita. Prabhuji is a sterling youth icon in various social media such as YouTube, and he is highly revered in India as well as abroad for his impressive presentation of Krishna consciousness. He is a counselor, he is an orator, he is a singer, he is a storyteller. He is also a director, actor and script writer. And he has done for various famous drama groups like Vaikuntha Players, etc. Prabhuji is a lifestyle coach for youth, for teachers, families and corporative world. Also, Prabhuji is a social media celebrity having 2.6 million followers in My Ashray YouTube channel. His Grace Amog Leela Prabhu is a vice president of ISKCON Dwarka, a huge multi-crore temple and educational center in Delhi, which is just on the verge of completion, and also the director of ISKCON Youth Forum Dwarka. And under his leadership, ISKCON Dwarka distributed more than 4 crore prasadam plate during COVID pandemic. Prabhuji is also a director of Spirituality for Modern Age, a course which is helping lakhs and lakhs of Indians find out the purpose in their life. It has already registered 1 lakh plus students. So, Prabhuji is also working with the Uttar Pradesh government regarding value education program in school and colleges. Not taking much time, let us welcome him in his own style by loudly chanting Hare Krishna. Give a big round of applause and let us welcome and hear from him. Thank you everyone. Hare Krishna. So sincere gratitude to the college management, directors, teachers, faculties, administrators, all of you students who are here, who have taken out your precious time for today's occasion. I am feeling really honored coming to NIT Rourkela. Such a beautiful management,
and sincerity which is imbued in entire environment is really very, very impressive. So thank you very much for your warm welcome. Hare Krishna. So today the topic which has been given to me is about being mental, sentimental, and then transcendental, right? And sometimes dental also. Yeah. So, but yes, since the topic which we are focusing today is about mental well-being. So जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर there is hardware as well as there is software. Although both are important, but which of the two is more important? कुछ लोग अच्छा कौन कौन मानता है हार्डवेयर, हाथ खड़ा करें. कौन मानता है सॉफ्टवेयर, हाथ खड़ा करें. अच्छा कौन कौन कंफ्यूज्ड है. अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है. ठीक है ठीक है. सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट. मान लो आपके पास फोन है नोकिया 3310 बटन वाला फोन, उसमें सिम कार्ड है, और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी और मे बी एप्पल का फोन, लेकिन उसमें सिम कार्ड जो है टेढ़ा मेढ़ा है. कौन सा फोन आप प्रेफर करोगे? है सैमसंग गैलेक्सी जिसका सिम कार्ड खराब हो चुका है, या फिर नोकिया 3310 बटन वाला फोन पर सिम कार्ड काम कर रहा है? हाँ, हार्डवेयर किसका अच्छा है? सैमसंग गैलेक्सी का. नोकिया 3310 पत्थर जैसा फोन होता है कि सर में मारो बंदा मर जाए. सो सिम कार्ड इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हमारी बॉडी के अंदर भी हमारा हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, बट सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट. As you see in this world, there are people who are suffering less because of body, more because of mind. Actually, मेरा पहले पर्पस था that I'll become millionaire. मैं बहुत पैसा कमाऊंगा. This was my ambition. और मैं गरीबों की सेवा करूंगा. क्या बात है, कोई लाइव सुन रहा है क्या अलग से? So पहले मेरा प्लान ये था that I'll make lot of money and serve poor people. गरीबों की सेवा करनी चाहिए. पर मैं देखा लोग ना तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी है. एक्चुअली the number of people committing suicide is twice the number of the people getting killed by someone else. यानी कि हम दूसरे लोगों से कम दुख पाते हैं, अपने आप से ज्यादा दुख पाते हैं. And since I have worked with some of the top notch people, page 3 parties, वो सब मैंने देखा है. So vice presidents, board of directors, इन सब के साथ मैंने काम किया. मैंने इतने इगोइस्टिक लोग हैं, माय गॉड. चलते फिरते मतलब ईगो को दे देना, चल तू एक ग्रुप ले ले. वेरी इगोइस्टिक पीपल. लड़की अगर केबिन में घुस जाए पहले स्कैन मार दे उसमें. यस मैडम. वो भी घबराती है, जाऊं कब मिलूं कैसे मिलूं. अरे तो इस व्यक्ति के पास हार्डवेयर अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है. और कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे ना, आई वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, बहुत बुरा हाल, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल. ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड खाना, लेकिन दुख भी उतने ब्रांडेड है उनके. So that's why actually to take care of the mind is really very important, very very important. So mind, सबसे पहले देखते हैं डायग्नोसिस करते हैं. So mind का ठीक है. So diagnosis in the form of an acronym MIND. So mind हमारे साथ क्या गेम खेलता है? सबसे पहला M. M stands for magnify the problem. प्रॉब्लम होगी छोटी सी, उसको बड़ा दिखाता क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास. कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास? माइंड का. छोटी प्रॉब्लम बड़ी नजर आती है बिकॉज ऑफ द माइंड. मान लो कोई ना कोई रोज आपको गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और एक दिन वो ऐसे निकल गया. वो आप इतने दुखी हो जाओगे ना, कहता अरे आज गुड मॉर्निंग नहीं किया, घमंडी है. हो सकता है द पर्सन इज लॉस्ट, कुछ सोच रहा है, यू नो, पर जो रोज गुड मॉर्निंग बोलता हो, एक दिन वो गुड मॉर्निंग ना बोले ना, चुभता है. जबकि है बात छोटी सी, और बड़ा किसने किया उसको? माइंड. यस. व्हाट इज दैट व्हिच एक्चुअली गिव्स मीनिंग टू एन इवेंट? इज माइंड. मान लो आपने कुछ प्रपोज किया कि ना ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, और वो नहीं हुआ. माइंड कहता है ओ पॉलिटिक्स. NIT राउरकेला में ना
बहुत पॉलिटिक्स है। मीटिंग में हमने सजेस्ट किया था जानबूझ करके हमारा पॉइंट लिया नहीं गया है, उसका पॉइंट लिया गया है। पॉलिटिक्स। अब ये सारी ड्रामेबाजी कहां हो रही है? माइंड के अंदर। मेरे पास एक व्यक्ति आया हमारे मंदिर में, इस्कॉन द्वारका में, कहता है अमोघ लीला जी आपको पता है आपके मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा बताओ क्या चल रहा है? कहता पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा नहीं नहीं, ये कीर्तन चल रहा है, थोड़ा भजन है, थोड़ा प्रसाद बांटते हैं हम लोग, थोड़ा बस ये तो नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, आप अंधे हो गए हैं, आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है आपके इस्कॉन के अंदर। मैंने कहा और कहीं चल रही हो ना चल रही हो, एक जगह तो जरूर चल रही है, तेरे खोपड़े के अंदर। क्योंकि सारा खेल कहां होता है? मन के अंदर एक्चुअली। सो व्हाट इज दैट विच गिव्स मीनिंग टू एन इवेंट? माइंड। और मन का काम भी क्या है ना, हमेशा असंतोष में रहना, ऑलवेज। एक पोएम है ना, देयर इज वन पोएम, व्हेन इट इज हॉट you want it cold, when it is cold you want it hot, always desiring that which is not. जो नहीं है ना उसको लेकर के, अरे यार काश काश काश। जैसे आप में से किसी के दांत में कभी सौंफ फंसी है? सौंफ खाते हैं ना, तो दांत में अगर सौंफ फंस जाए, जीभ बार बार कहां जाती है? जहां जौ फंसी होती है। बात करते करते तो यार फिर मैंने जो वहां से निकला ना, तो मैंने फिर रिक्शा वाले को रोका, ये जीभ बाबा वहीं को जा रही है जहां सौंफ फंसी हुई है। जीभ से बोलना चाहिए जीभ बहन थोड़ा यहाँ भी घूम, यहाँ घूम, यहाँ घूम। नहीं, वहां पर सौंफ फंसी है ना। माइंड भी ऐसा ही है। 99% जगह पे आपको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां एक जगह दिक्कत है ना, हल्का सा वो इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी, वहां पर अरे यार बस काश वो हो जाता ना, काश वो हो जाता ना। There was once a king, वो अपने मिनिस्टर के साथ जाता था अपने किंगडम में देखने के लिए, where everything is working fine or not, जाया करता देखने के लिए और भेष बदल करके। तो उसने एक ब्राह्मण को देखा, तो राजा ने जब ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण वॉज वेरी सेटिस्फाइड, अपनी पत्नी के साथ रहता है, झोपड़ी में रहता है, खुश रहता है। तो राजा ने बोला, यू नो आई एम अ किंग, आई एम नॉट दैट हैप्पी, सी दिस पुअर ब्राह्मण, ही इज हैप्पी, ऐसा क्यों? सो मिनिस्टर ने कहा जहां पना, क्योंकि 99 क्लब का मेंबर नहीं है। 99 क्लब, व्हाट इज दिस 99 क्लब? जहां पना, लेट मी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट टू यू जहां पना। तो अगले दिन सुबह ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से बाहर आया, बाहर पड़ा था एक बॉक्स, उसने बॉक्स खोला, बॉक्स में देवर गोल्ड कॉइन्स। उसने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 96 97 98 99। अरे यार जिसको देना होगा 100 देने होंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलता है 99 गोल्ड कॉइन्स फॉर यू, 100 गोल्ड कॉइन्स, ऐसे होता है। तो अगर एक और गोल्ड कॉइन आ जाएगा ना, देन आई कैन बोस्ट अराउंड, well I have got 100 gold coins, then I can flaunt. अब ये कैसे बताएं I got 99 gold coins? सुनने में भी अजीब लगता है। So I should get one more gold coin. So he went to the landlord. Landlord के पास गया, कहता है landlord, how much should I work for you that you give me one gold coin? उसने कहा देखो ये अनाज की बोरियां हैं, इनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो, ये ट्रांसफर दिस ग्रेन बैग्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, 6 घंटा हर रोज काम करो, 1 महीने बाद 1 गोल्ड कॉइन। वेरी गुड। तो 6 घंटा हर रोज ये ब्राह्मण स्टार्टेड ट्रांसफरिंग द ग्रेन बैग्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। फाइनली आफ्टर 1 मंथ उसको मिला 1 गोल्ड कॉइन। उसने फिर एक गोल्ड कॉइन लिया और बॉक्स में डाला, काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 95 96 97 98। ये क्या भाई, हमने तो 1 गोल्ड कॉइन डाला है, 99 से 98 हो गई। अरे सुनती हो, अरे भगवान भैया 98 कैसे हो गए, मैंने डाला इसके अंदर। तो वाइफ ने कहा वो एशली का थोड़ा शॉपिंग कर ली थी तो इसलिए ना 2 गोल्ड कॉइन खर्च हो गए।
तब भी मैं कहूँ भाई हमने तो एक कौन डाला था, 98 हो गए। फिर वो गया जमींदार के पास, he went to the landlord, he said if I work instead of 6 hours, if I work for you 12 hours every day, will you give me 2 gold coins? Simple mathematics, 6 hours every day, 1 month, 1 gold coin, 12 hours every day, 2 gold coins. And then that poor Brahmin started working every day 12 hours for the landlord. और फिर राजा का जो मिनिस्टर था उसने कहा जहाँ पना अब ये ब्राह्मण भी हो गया है 99 क्लब का मेंबर, इसकी भी खुशियाँ हो गई खत्म। एंड सिमिलरली वी ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ 99 क्लब। जो है उसको लेके ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नहीं है उसको लेके काश 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 एक दिन आकाश। So what you have, one should be satisfied. Like during our time, when in the year 2000, when we were preparing for IIT, engineering exam की तैयारी करते हैं हम लोग, एक लड़का था, he attempted suicide, उसका रैंक आया था IIT में 16th रैंक। आप कहेंगे प्रभु जी अजीब सी बात नहीं है, IIT में किसका आ जाए वो भी 16 रैंक और वो सुसाइड अटेम्प्ट करे, अच्छी बात है? मतलब उससे लॉजिक है, लेकिन लॉजिक ये है स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक ही वॉज ऑलवेज रैंक 1। IIT में उसका रैंक 16 आ गया एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड। हम लोग साथ हम तो मिठाई बांटेंगे ना, अरे भाई फला IIT में हो गया मेरा, अरे रोजी 16, आप 16 मिठाई खाओ आप। बट ही अटेम्प्टेड सुसाइड, बच गया हालांकि। उसको बोला अरे मूर्खानंद, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कहाँ है? लाइक समटाइम्स व्हेन वी गो टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस ना, मेरे को टीचर्स बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जी बच्चों को थोड़ा समझाइए, वी वर्क सो हार्ड ऑन देम, 4 साल लगाते हैं इनको इंजीनियरिंग कराते हैं हम लोग। एक बच्चा आकर के थैंक यू नहीं बोलता, ऐसे पलट के जाते हैं, कहते बस बाय बाय, अभी शक्ल नहीं देखेंगे आपकी। नहीं जाते। कहते हैं प्रभु जी इनको थोड़ा ग्रैटिट्यूड सिखाइए। आज के स्टूडेंट्स में ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रिपेयर करके आते हैं कि इनको बच्चों को हम पढ़ाएंगे, इनके डाउट्स दूर करते हैं, इनके लैब ये वो फला डिमका, कितनों को पास कराते हैं, तू फेल हो रहा है मूर्ख, थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ, बताना मत किसी को, कितना कुछ करते हैं इनके लिए। पर एक बच्चा आकर के नहीं बोलता थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मुझको याद है, आई वंस वेंट टू माई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, बिकॉज वी आर हैविंग गीता सार कॉन्टेस्ट, तो उसके लिए मैं अपने खुद के स्कूल में गया था एक बार। सो माई टीचर सॉ मी इन दिस क्लॉथ्स, कहते अरे बेटा तुम साधु हो गए। मैं कहा हाँ मैम, अब थोड़े आपने अच्छे संस्कार दे दी तो फिर क्या करें, अब थोड़े टेढ़े मेढ़े संस्कार होते हैं, हम भी किसी के साथ घूम रहे होते हैं या। कहते नहीं बेटा आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने जब उनके पाँव छुए, शी हैड टीयर्स इन हर आईज। कहते बेटा कोई स्टूडेंट तो आता ही नहीं, दे डोंट हैव ग्रैटिट्यूड, तुम आए हो बेटा आज, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। सो ऑल्दो शी इज नॉट स्पिरिचुअल, but I felt her blessings just because of gratitude. The feeling of gratitude is such a beautiful thing. तो इसलिए ये अपने अंदर लेकर के आने चाहिए, जो है उसको लेकर थैंक यू, और जो नहीं है उसके लिए ना बहुत तड़पना नहीं चाहिए, ये वो क्यों नहीं है यार, वो वही नहीं है यार, हाँ वो। चाणक्य पंडित says in 3 places you should be satisfied, 3 places you should not be satisfied. 3 places where you should be satisfied. First, regarding your earning, you should be satisfied. क्या भाई 9 घंटे काम किया है ना, उसका जो आया खुश रहो यार। ये नहीं कि 12 घंटे 15 घंटे हेल्थ खराब हो रही, फैमिली वाले बोले हमारे लिए टाइम कब निकालोगे। वर्क लाइफ बैलेंस सिंपल, जितनी अर्निंग आ गई थैंक यू प्रभु, प्रयास पूरा किया था इतना आ गया थैंक यू। लाइफ पार्टनर को लेकर के वन शुड बी सेटिस्फाइड। ये ना सोचा अरे यार पड़ोसी की लॉटरी लग गई, हमें तो यही मिला यार, बताओ। सेटिस्फाइड, ठीक है, ये हमारा प्रारब्ध है भाई, हमारा आपका जो भी लाइफ पार्टनर है ना वो आपको प्रारब्ध है असल में। ये जो गुण मिलाते ना, गुण मिला लो, इतने गुण मैच हो गए, सर जो मिलना है आपको वही मिलेगा। इसे देखो कभी कभी रिश्ते होते हैं कत्ते का ऑस्ट्रेलिया, क्यों पूरे इंडिया में लड़के नहीं थे क्या? क्योंकि आपका प्रारब्ध वहां वेट कर रहा है, वही आएगा। सो लाइफ पार्टनर को लेकर के वन शुड बी सेटिस्फाइड। खाने को लेकर के वन शुड बी सेटिस्फाइड। ये नहीं कि जो खाने का है इसमें चटनी का है, दही का है, इसमें ये का है, इसमें नींबू पानी का है, अचार का है, मिला है ना चुपचाप खाए इसको। तो क्या कुक नहीं करनी चाहिए खाने में। तो इन 3 places we should be satisfied. What you eat, life partner and earnings, we should be satisfied. 3 places one should not be satisfied. In chanting the names of God, one should not be satisfied. Gosh, if I wish I could chant more the holy names of God, but since I am busy
in my studies, in my responsibilities. I wish I could chant more. In charity, one should not be satisfied. I wish I could give more. लेकिन अभी इतना ही है, क्या करूँ? I wish I could give more. Third, knowledge. One should never be satisfied. I wish I could learn more. और जान पाता, और सीख पाता. So learning को लेकर के, knowledge को लेकर के, one should not be satisfied. So in 3 places, do not be satisfied. 3 places, one should be satisfied. But it's the nature of mind to remain always dissatisfied. उसकी वजह से mind becomes really crazy. अब देखिए लाइफ में who contributes more? Those who are satisfied or those who are dissatisfied? Those who are satisfied, they contribute. कहते हैं हम पूरे हो चुके हैं जी, I am done. Now I am ready to contribute. जो खुद thirsty है ना, वो देखता है, he is an opportunistic person. कहाँ मौका मिलेगा रे, वहाँ निकालते हैं, because he is not satisfied. So satisfied people, they contribute. Satisfied people, they become leaders because they contribute. उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको अब दूसरों के लिए चाहिए. That's it. तो इसीलिए sense of satisfaction, that is what we should practice. जरूरी है. But dissatisfied भी कहाँ रहना है, unsatisfied कहाँ रहना है, उसके भी avenues हैं. Like knowledge, acquire knowledge. वो होना चाहिए. So M stands for magnify the problem. I stands for imagines pleasure. एक और माइंड का काम क्या है? Imagining pleasure. कल्पनाएं बनाना, मजा होगा, मजा होगा, मजा मजा मजा. जैसे कॉलेज में लड़का लड़की जो है एक दूसरे को देखते हैं जब, wow, what a hot baby. You're a handsome guy, man. Wow. ये तू मत देख उसको, मेरा है वो. Imagines pleasure. कहते हैं guys, you and I in this beautiful world. Hey, oh, hey. Imagining pleasure. उस pleasure के साथ responsibility क्या है वो imagine नहीं करेगा mind. Mind will not think of responsibility. Mind will only think of pleasure. मज़ा किसमें हो कर रहे, मज़ा मज़ा. Imagining pleasure. तो ये mind is more into pleasure. सही क्या है गलत क्या नहीं देखता वो. जैसे आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में क्यों कमजोर हैं? ये सर ने हाईलाइट किया ना, ये गैजेट. हालांकि ब्रह्मचारी दिखता है, ब्रह्मचारी है नहीं ये. हाँ, बदमाश है ये. कोई सोचे तो साधु है. ये देखो सेम कलर. ना 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 ना, ये रावण है. रावण साधु रंग का कपड़ा पहन के आया था वो, लेकिन अंदर से बदमाश है वो. तो ये जो गैजेट है ना, इसमें क्या प्लेजर है? नेटफ्लिक्स है, या आपने किताब खोली अगर, तो किताब खोलेगी ना, बाहर पुकारेगा आपको ये, आजा आजा. क्या है? मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 आजा. तो आप पढ़ रहे थे वो एच.सी. वर्मा. एच.सी. वर्मा साहब, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ. चलो जी. हाँ, pleasure. So more we are addicted to pleasure, more we are away from knowledge. तो ये क्या, ये temporary pleasures हैं, short term pleasures हैं, cheap thrills. क्या, it thrills but it kills. तो ये वही है actually. तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में जितना आप प्लेजर एडिक्टेड रहेंगे, यू कैनॉट एक्वायर नॉलेज. देखो मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, मेरे को पता है इवन आफ्टर कॉलेज आपको लैब में बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो आप कोडिंग नहीं कर सकते. आज इंडिया के अंदर जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, उनमें 96% को कोडिंग करना नहीं आता, प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती उनको, क्योंकि आपको बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपको एरर ट्रबल शूट करने पड़ते हैं, तब जाके कोडिंग होती है. नहीं तो कोडिंग ऐसे नहीं आती, बैठना पड़ता है, लंबे लंबे कोड्स को स्टडी करना पड़ता है, तब यहाँ कोडिंग आती है. ऐसे नहीं बस कॉलेज में हो गया, असाइनमेंट सबमिट कर दिए, प्रोजेक्ट. अरे प्रोजेक्ट तो क्या है, कहीं से डाउनलोड मारेंगे, प्रिंट आउट निकाल दे देंगे, सर प्रोजेक्ट. ये सर वो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का हमने बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिकली ना उसको बुक इशू होगी. या थोड़ा समझाया जरा इसमें क्या दिया है. सर इट्स वेरी नाइस कोड, आप पढ़ लीजिए सर. तो ये क्या कोडिंग करेगा ये ना. So in case you are imagining pleasure and you are lost in that, you cannot do what is your duty. तो अभी आपकी ड्यूटी क्या है स्कूल में, कॉलेज में? What is your duty? Is to study, right?
तो इसलिए जितना सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट से आप अटैच्ड हैं, यू कैन नॉट रियली ग्रो. देखिए, मन को ना सुनना नहीं चाहिए, मन को सुनाना चाहिए, लेकिन हम मन को सुन रहे होते हैं. सो आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनिंग प्लेजर. एम क्या था? मैग्नीफाई द प्रॉब्लम. आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन्स प्लेजर. एन स्टैंड्स फॉर निगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. माइंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं लगती. माइंड डजंट वांट दैट. इसी कभी टीचर पूछते हैं, ओके ये कौन करेगा ये काम? सबके हाथ नीचे. मत पढ़ो चक्करों में, कौन बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा? माइंड कहता है मत पढ़ यार, और क्या, खाली बैठेंगे वाईफाई पे टाइम पास करेंगे. नेगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड डी फॉर डिनाइज रियलिटी. माइंड को रियलिटी अच्छी नहीं लगती. जैसे मैं देखा ये एवेंजर्स क्यों पसंद है लोगों को? स्पाइडरमैन, एंटमैन, आयरन मैन क्यों पसंद है? क्या ये रियलिटी है? इट इज नॉट रियलिटी. मैं देखा इवन बड़े लोग भी जाते हैं, कॉलेज के बच्चे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, कहाँ जा रहे हैं? एवेंजर्स, थानोस. लेकिन आप तो बड़े हो गए ना, तो बच्चों वाली चीज है, अच्छा लगता है. पीटर पार्कर अच्छा लगता है. यस. रॉबर्ट डे जूनियर, वो अपना आयरन मैन का सूट बनाया उसने, वाह क्या बात है. वो न्यूक्लियर रखा हुआ उसने, पावर मैन, क्या बात है, वाह. और ये सब लोग देखते हैं, अरे और सो नाइस. सो डी स्टैंड्स फॉर डिनाइज रियलिटी. अब देखो मूवी हॉल के अंदर ना सारा और अंधेरा क्यों होता है? बिकॉज एवरीवेयर इज रियलिटी, बट दैट विच इज नॉट रियलिटी वो स्क्रीन पर है. तो सारा अंधेरा कहता है रियलिटी छुपाओ. That's the nature of mind. Denies reality. So M, I, N, D. M stands for magnify the problem. I stands for imagines pleasure. N stands for negates responsibility. And D stands for denies reality. ऐसा है mind. In fact, Vedic scriptures they describe a mind. You know mind कैसा है? Mind is like a monkey. Monkey देखा आपने? कितना रेस्टलेस होता है. सोचो एक ऐसा मंकी हो जिसको किसी ने दारू भी पिला दी हो साथ में, उसका क्या हाल होगा? दारू तो पी हो, साथ में उसको बिच्छू भी काट ले, उसको बिच्छू तो काट ले, साथ में उसको भूत भी चढ़ जाए. सोचो कैसा बिहेव करेगा. दैट इज हाउ द माइंड बिहेव्स. सो वी लिव विद द ग्रेटेस्ट एनिमी विद आवरसेल्व्स, व्हिच इज द माइंड. दैट्स व्हाई इन इंग्लिश वी से माइंड योर ओन बिजनेस. वी नेवर से बॉडी योर ओन बिजनेस. क्योंकि बॉडी और माइंड में इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड. दिखता नहीं है, लेकिन आपकी सारी लाइफ चलती इसी की वजह से एक्चुअली. तो बोला इसका इलाज क्या है? ये तो हमने डायग्नोसिस कर लिया. डायग्नोसिस अगर हमने दवाई नहीं दी तो फिर डायग्नोसिस फायदा क्या? ठीक है, पता लग गया, ओके बदमाश है. अब व्हाट नेक्स्ट? सो हाउ टू टेक केयर ऑफ द माइंड. देखिए माइंड का मैंने क्या बताया, माइंड को क्या पसंद है? प्लेजर, मजा. सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित, हाँ कहते हैं ये थोड़ी यार मजा करना होता है. पर सही क्या गलत क्या ये कौन देखता है? इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस शुड बी अबव द माइंड. सो इंटेलिजेंस देखिए ना माइंड गलत कर रहा है, ए नॉनसेंस, ये इंटेलिजेंस का काम है. सो इंटेलिजेंस शुड बी अबव, माइंड शुड बी बिलो. ये तो नॉटी है, तो बच्चा है ना, इसलिए तो ऊपर होना चाहिए इंटेलिजेंस को. पर दुनिया में 99.99% लोगों के साथ उल्टा है. माइंड ऊपर, इंटेलिजेंस नीचे. माइंड कहते हैं ए मेरे को कुछ गलत सलत काम करना है, मेरे को कुछ मजा वजा करना है. इंटेलिजेंस कहती है सर हम अभी करेंगे सर, मैं अभी कुछ जुगाड़ देखता हूँ, पता भी ना चले काम भी हो जाए. कैसे करेंगे? आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग वल्गर ऑन इंटरनेट. कैसे कैसे कैसे? सर गलत काम करेंगे, गलत सलत देखेंगे, क्लिक ऑन टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके. अब किसी को पता नहीं चलेगा सर. शाबाश इंटेलिजेंस, लव यू. इस आदमी का बेड़ा पार है, बेड़ा गर्क. बेड़ा गर्क होना क्या चाहिए? उल्टा. इंटेलिजेंस ऊपर होनी चाहिए, राइट? तो अभी इंटेलिजेंस हमारी यहां पर है,
इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो यानी इसको कुछ खिलाना पड़ेगा ना. इंटेलिजेंस शुड बी फेड समथिंग. What should we feed intelligence so that intelligence comes from this place to this place? Knowledge. The food of intelligence is knowledge. कौन सी knowledge? Spiritual knowledge. इसने आपको करियरली एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी कल्टीवेट करनी चाहिए. जैसे आज जो सॉन्ग गा रहे थे ना, उस सॉन्ग के अंदर ये है that you are oh my mind, you are always after that knowledge, पर इस नॉलेज का स्पिरिचुअल नॉलेज उन्होंने कभी कल्टीवेट ही नहीं की. You know? तो हमें करियर नॉलेज भी चाहिए और साथ साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए. ये तो आप देखो, हम इवन अपनी करियर नॉलेज ठीक से नहीं ले पाते. वाई? बिकॉज आई डोंट हैव स्पिरिचुअल नॉलेज. पर स्पिरिचुअल नॉलेज होती है तो आपका फोकस आता है. फोकस आता है देन इवन यू कैन डू योर करियर स्टडीज प्रॉपरली. इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूरी है. आप में से किस किस ने कभी, जिनके पास गाड़ी है वो सर्विसिंग कराते हैं? कौन गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं? कराते हैं सर? क्यों कराते हैं? कहते क्योंकि जी उसके मैनुअल में लिखा हुआ है आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स यू शुड सर्विस योर व्हीकल. अच्छा, तो अपनी गाड़ी मतलब आप मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं? यस यस. अच्छा, आपकी लाइफ कैसे चलाते हैं आप? हैं सर, गाड़ी के लिए तो मैनुअल है, तो लाइफ के लिए भी कोई मैनुअल होगा ना. लाइफ चल रही है बिना किसी मैनुअल के, तो लाइफ के लिए भी मैनुअल्स हैं. जस्ट लाइक वी हैव होली स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, भागवतम. दीज आर मैनुअल्स. पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए. हमने दिल्ली में ना, वी हैड वन कॉन्टेस्ट, गीता सार कॉन्टेस्ट. उसमें 1 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें रैंक 1 आया था एक मुस्लिम लड़की का. शी वॉज रैंक 1. तो हमने उसको पोडियम पे बुलाया, आ जाओ बेटा, यू वांट टू से समथिंग. एंड दिस मुस्लिम गर्ल, शी सेड, it was very delightful experience to read Bhagavad Gita, although I read it for competition, but it was very nice. Thank you very much. But I would request all my Hindu brothers and sisters, they should also have their personal copy of Bhagavad Gita. A Muslim girl is saying. We Muslims have got our personal copy of Quran, but I don't see Hindus having their personal copy of Bhagavad Gita. All of them, all of you, my brother and sister, you should also have your personal copy of Bhagavad Gita. She said this. A Muslim girl said that. तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाड़ी चलाते हैं मैनुअल के हिसाब से, लाइफ चलाएंगे बिना मैनुअल के. नो, स्पिरिचुअल नॉलेज विल ब्रिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. देन वी कैन कॉन्कर द माइंड, देन वी कैन टेक केयर ऑफ द माइंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज दैट वी शुड हैव सम वेरी नाइस फ्रेंड. हमारी लाइफ में एक ऐसा वेलविशर फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप मन की बात को बोल सकें. Sometimes problem is not that big, but it appears to be big. Why? Because हमने किससे शेयरिंग नहीं की. इससे एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ. क्यों खोलना पड़ा? अंदर कुड़ कुड़ के फिर फाइनली फिर सर्जरी वगैरह हो गया था. बड़ी ब्लॉकेजेस इकट्ठी कर रखी हमने. कभी कुछ शेयर नहीं किया किसी के साथ अपना हार्ट? नहीं, अकेले रहे, सोच के. So there should be someone to share our heart with. Just like Arjuna shared his heart with Krishna. So Krishna did his counseling. And then Arjuna said, Nashta moha smritir labdha. Yes, sharing the heart is very important. Life में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए who can keep things confidential and who is not an all India radio. ऐसे नहीं आपने उसके साथ दिल खोला, उसने कह दिया बस अब देखो सर. अरे उसके साथ पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैं बताता तुमको. यार तूने सबके आगे पोल पट्टी खोल दी हमारी. कहते क्या करें, इतना मसालेदार चीज पता लगी थी, तुम थोड़ा हम बता दें हम. तो सच अ पर्सन हु कैन कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, हु इज योर वेल विशर. कम से कम एक ऐसा व्यक्ति लाइफ में होना चाहिए. कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए. तो अगर ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, देन वो माइंड जो है ना, इट बिकम्स, अब उसमें ड्वेल करते इट बिकम्स वेरी ग्लूमी, वेरी डार्क. यस, तो इसलिए अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है अच्छे रिश्ते. गुड रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट. दैट्स इंपॉर्टेंट. आप ऐसे कितने लोगों ने अंगूर खरीदे हैं कभी? 2 तरह के अंगूर मिलते हैं, एक जो गुच्छों में होते हैं और एक जो बिखरे बिखरे होते हैं. कौन से अंगूर महंगे मिलते हैं? हाँ, गुच्छे वाले.
यानी हम भी जब गुच्छों में हैं तो हमारी कीमत होती है, हम जब बिखरे बिखरे होते हैं हमारी कीमत कम हो जाती है, तो हमें गुच्छों में होना चाहिए। यस। अब वैसे कितने लोगों ने कभी केक पेस्ट्री शॉप से घर लेकर के गए हो अभी, या किसी को देखा है? तो हम केक या केक कैसे लेके जाते हैं? ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं आराम आराम से। चल तू गाड़ी में बैठ, हाँ पकड़ इसको। केक ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, रिश्ते भी ऐसे ही हैंडल करने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिश्तों के लिए भी आपका मन अच्छा होना चाहिए, राइट? सो रिश्तों के लिए मन अच्छा होना जरूरी है, और अच्छे मन के लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए। अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव हो, लेकिन कोई आपकी बात सुनने वाला होता है ना, फर्क पड़ता है। लेकिन अयोध्या देयर वाज वन डिपार्टमेंट विच वुड जस्ट लिसन टू द कंसर्न, सोल्यूशन नहीं देना, सिर्फ सुनना। अच्छा फिर क्या हुआ? ओ फिर ऐसा हुआ, अच्छा गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना। उसी में मन हल्का हो जाता है, यार किसने सुन लिया। So for good mental health there should be someone to share your heart. कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, एक तो लोकली होना चाहिए, एक थोड़ा सा दूर दराज वाला होना चाहिए, पर होना चाहिए। That's very good for mind. Third, your mind is directly impacted with what you eat. जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा जीने का ढंग। जैसे for example those who eat non-vegetarian food, it actually makes the mind more prone for agitation. When I was in USA, तो मेरी साथ एक और प्रोग्रामर थी, she was an American, उसका नाम था कैरी मॉरिस। तो उसकी बेटी लैला बीमार पड़ी, तो मेरे पास आई, कहती है, क्या कहें, विल यू प्रे फॉर माई चाइल्ड, आई नो यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स ऑल्सो, बट आई विल ऑल्सो प्रे फॉर योर चाइल्ड। बट मैंने कहा, बट कैरी, बट यू हैव टू गिव मी वन प्रॉमिस, अगर तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, इफ योर डॉटर बिकम्स वेल, यू विल गिव अप दैट विच इज योर फेवरेट। She said, okay, promise. I'll give up that which is my favorite. तो मैंने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से, मैंने कहा, कृष्णा प्लीज let her child become fine if you so desire. So भगवान की कृपा से after 2 days her daughter was fine. And she was very happy. Thank you so much. You prayed for my child. She's absolutely fine. I can now carry. You have to carry your promise. You have to give up that which is your favorite. She said, my favorite is meat. I like eating meat. Especially this beef, I love it. So I said, okay, if you now you have to carry your promise, you have to give up eating meat. So she gave up eating meat. So after 15 days, then she came to me. अब मैं उसको ले जाता था साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं ले गए उसको खिलाना पिलाना, like that. So after 15 days she came to me and she said, my mind is very calmer than before. उसको पता नहीं था this agitation is there because of meat. So every day she used to bring salad, सलाद लाती थी वो। मैंने कहा तो रोज सलाद खा के थोड़ा तंग हो जाएगी, देखो मैं थोड़ा वैरायटी देता हूँ। और सो आई टुक हर टू साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ से इडली वड़ा डोसा सांभर खाया करती, वाह। उसको थोड़ा सा उसके पानी निकला, थोड़ा स्पाइसी बना था, तो उसके नाक से पानी, कान से पानी, पानी पानी, आँख से पानी। बट शी लव्ड इट, कहते बट इट इज सो नाइस। तो मैंने उसको बोला, मैं थोड़ा मिर्ची कम लगा भाई, अमेरिकन है। So, but yes, she said that agitation which was there in the back of my mind, I am freed from that. Thank you so much. Although मैंने मीट छोड़ा था अपनी बेटिया के लिए, but I am feeling so much relieved. So आप क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है, because garbage in, garbage out. What goes in is what comes out. तो इसलिए आप क्या खाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाओगे बाहर से, यू विल बी वेरी कूल, ए मैन आई एम कूल, ऐसा नहीं होता। What you eat is also very very important. कहीं लगता है कि ना मीट खाना जरूरी है बिकॉज से ना शक्ति मिलती है, पर सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो यानी शक्ति कहाँ पर है? घास फूस में। लोगों को लगता है अबे तुम क्या घास फूस खाते हैं? अरे भाई घास फूस में ताकत है बहुत। हाँ, नेचुरोपैथी वाले उनको उनसे पूछो। एक्चुअली ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज देयर वाज वन गाय, ही वाज क्रॉनिक मीट ईटर। रोज एक्चुअली हमारे कॉलेज में देयर वाज वन मटन शॉप, रोज जाके मटन खाएगा वो।
जाता था मीट खाने के लिए, और मेरे को छेड़ता भी था, ये है डोले शोले आता था, जिम विम जाएगा वो, और मैं बहुत दुबला पतला। करंटली आई एम 79, सोचो उस वक्त मैं 52 किलोग्राम हूँ, सिकड़ा एकदम थिन। सो मैंने जैसे मैं बैठने लगूंगा नीचे कंपास रख देगा वो। अब मैं इस्कॉन से नया जुड़ा था, मैंने कहा डिवोटीज बोलते हैं सहन करो सहन करो, कितना सहन करो यार, हाउ मच टू टॉलरेट। सो वन टाइम देयर वाज पंजा कॉम्पिटिशन, सो ही वाज ऑन द अदर टीम, आई वाज इन दिस टीम। तो मुझको पता लगा उसका नाम बीटा रखा, अल्फा बीटा गामा थीटा, मुझको पता लगा उसका बीटा है। मैं कहा भाई मेरा बीटा रखो यार, कहता श्योर। मैं कहा ठीक है बीटा, यस ओके। तो अल्फा, तो यहाँ का अल्फा, यहाँ का अल्फा, पंजा, ओके बीटा। तो वो आ गया सामने से, मैं यहाँ से आया, कहते तू बीटा है? मैंने कहा हाँ मैं बीटा हूँ। अब तू पीटा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं कहा ठीक है, अभी नाउ लेट्स वील हैव पंजा कंपटीशन। अगर मैं हारा तो मैं आज से नॉन वेज खाऊंगा, और अगर तू हारा तो आज से वेजिटेरियन खाएगा। तो कहता है बस सोच के बोल, तू नॉन वेज नहीं खा पाएगा। मैंने कहा अगर मैं हारा तो। So let's have this पंजा competition, and then we had the पंजा competition, और हमारा पंजा बीच में रुका हुआ है, 1 मिनट हो गया। उसके बाद then I started defeating him, उसको मैंने इसको हरा दिया। कहता अबे सिकड़े, कहता दोबारा होगा, चीटिंग हुई है चीटिंग हुई है। मैं कहा ठीक है दोबारा कर लेते हैं। फिर दोबारा हुआ, मैं उसको दोबारा हरा दिया। ऐसा कैसे? मैंने कहा क्योंकि तू बोलता था ना घास फूस घास फूस। मैंने कहा बेटा ताकत घास फूस में होती है। मगर लेकिन आज से तू भी खाएगा घास फूस, क्योंकि पंजा कॉम्पिटिशन से पहले तय हुआ था। सो हालांकि 1-2 बार वो मीट खाने गया, बट उसने अवॉइड किया। मैंने कहा दोबारा डोंट डू दैट, कंडीशन वाज दैट। सो कहीं को ऐसे गलत है दैट मीट खा के शक्ति मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है, घास फूस में शक्ति है एक्चुअली। बल्कि जिनका मीट खा रहे हो ना वो घास फूस खाते हैं। जो शेर है वो हिरण खाता है, लेकिन हिरण क्या खाता है? घास फूस। घास फूस में शक्ति होती है एक्चुअली। सो व्हाट यू ईट दैट रियली इम्पैक्ट्स योर कॉन्शियसनेस, योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 4th इज डूइंग मेडिटेशन। आपका मन को बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू डू मेडिटेशन। अब अगर आप सिर्फ शांति से बैठ जाओ, यू डू नथिंग, सिर्फ यू डू सम ब्रीदिंग, दैट ऑल्सो मेक्स यू फील लाइट। लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स। और इसमें सबसे बेस्ट मेडिटेशन है चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, बिकॉज आवर माइंड इज डायरेक्टली इंपैक्टेड विद साउंड वाइब्रेशन। जैसा अगर को बोले अबे ओ धरती पे बोझ, जा जाके मर जा कहीं जाके साला, तो बुरा लगेगा ना। अरे यार सबके सामने इंसल्ट कर दी मेरी, such an insult in front of everyone. Mind will become dark and depressed, right? पर एक्चुअली है क्या? साउंड वाइब्रेशन। अबे धरती पे बोझ, जाके मर जा साले, ये क्या है? साउंड वाइब्रेशन, राइट? अच्छा और कैसे बोलते हैं, आप तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, जब से आप हमारी लाइफ में आए ना, हमारी तो लाइफ ही बन गई रही है। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू। अरे सच में। पर ये भी क्या है? साउंड वाइब्रेशन। यानी कि माइंड आपका कैसे हो जाएगा? माइंड की स्टेट डिपेंड करती है साउंड वाइब्रेशन पे। सो माइंड रिस्पॉन्ड्स टू साउंड वाइब्रेशन। सो भगवान का नाम, जस्ट लाइक वी चैंट हरे कृष्णा, इट्स अ साउंड वाइब्रेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इट्स अ साउंड वाइब्रेशन। सो माइंड रिस्पॉन्ड्स टू साउंड वाइब्रेशन। तो अच्छी हो बुरी हो, इट रिस्पॉन्ड्स। तो ये तो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है। So it really uplifts the mind. Yes. तो इसलिए we should chant the names of God. लेना चाहिए। थोड़ा सुबह 15-20 मिनट भी करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा एक्चुअली। लाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मैं सुबह 1-8 घंटा करके जाता था। भगवान का नाम लूंगा, आधा घंटा गीता पढ़ूंगा, एंड देन आई विल गो फॉर माई कॉलेज। और ऐसे करते हुए इट रियली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट फोकस बढ़ता है। In my library, I could study for 6 hours. तो मेरे दोस्त बोलते थे यार 6 घंटे कैसे पढ़ता है यार, हम तो 1 घंटा पढ़ करके दिमाग पक लेता हमारा। So then with pride I would say, well, because I chant Hare Krishna. So नाम लेते वक्त आपका मन भागता है, पर आप मन को वश में करते हो, फिर भागता है, वश में करते हो। This whole exercise ultimately we practice focus.
और ये फोकस को आप फिर पढ़ाई में भी लगा सकते हैं. So that phase आपका फोकस बढ़ता है when we start chanting the names of God, because while chanting आपका माइंड भागेगा. नहीं मेरे को प्लीज जाने दो यहाँ से. नहीं, listen, नहीं प्लीज, नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं वापस मैं जा रहा हूँ, नहीं. So during meditation you actually struggle. You struggle, but that struggle makes you stronger. That struggle sharpens your focus. So that phase हम अपने मन को लगा पाएंगे when we chant the names of God. देखो मन जो है ना बड़ी पावरफुल चीज़ है, वेरी पावरफुल. लेकिन इस पावरफुल चीज़ को आप तब यूज़ कर सकते हो when you purify it. जैसे मान लो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर वायरस है, कैन यूज़ अ पेन ड्राइव? नहीं, आपने लगाया उसको USB पोर्ट में, पॉपअप आ गया उसमें. The administrator has blocked your privileges to access the drive. हैं? एडमिनिस्ट्रेटर? मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यार. ऐसा कैसे? सर वायरस है. कैसे आया वायरस? कहते कुछ क्लिक किया था कहीं. कहते हाँ एक ऐप थी उसमें लिखा हुआ था कूल स्टफ. मैंने जैसे क्लिक किया उसके बाद से आना शुरू हुआ है. कहते सर ये कूल स्टफ ही गड़बड़ करते हैं. फाइनली मुझे रन करना पड़ेगा एंटीवायरस, वेदर मैकेफी, नॉर्टन, AVG, रन करना पड़ेगा ये सब. तब जा करके आप then you can use the pen drive. Similarly, we have to run the antivirus for the mind, and chanting the names of God is actually an antivirus for the mind. Mind clean होगा, then you can use mind for you, and then mind will be your best friend actually. So this is the way we can keep our minds healthy. ठीक है जी, I'll stop here. Let me take few questions now. हरे कृष्णा. किसी को सवाल है? Anybody has any question? हाँ जी, yes मैम प्लीज. हाँ जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज कि कोई इंसान है जिसके साथ बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं, मतलब कुछ चीजें हैं, पर 90% सब खराब है, कुछ बैठ ही नहीं रहा जहाँ बैठा है. या तो वो जो उस वक्त उस कंडीशन में होगा वो इंसान कोशिश करता है कि सैटिस्फाई रहे. यस या पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा उसके लिए कि वो खुश हो किसी भी चीज से. यस उसकी जिंदगी में 10% भी खुशी आती है, वो नहीं, वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता. या तो उस सिचुएशन में क्या करना? या देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं. इट कैन बी फाइनेंशियल क्राइसिस, इट कैन बी बैड हेल्थ, इट कैन बी बैड रिलेशनशिप्स, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड. सो इसलिए लाइफ में तो सबके साथ है. तो सबसे बात तो हमें एक्सेप्ट करें दैट यस इट इज नॉट जस्ट विद मी, इट्स विद एवरीवन. ये तो बाहर लोग अच्छे से मिलते हैं, और जी नमस्ते कैसे हो, ठीक है जी बिल्कुल जी, ठीक है, कोई भी नहीं है. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में. किसी की पत्नी टेढ़ी मेढ़ी है, किसी का पति सनकी है, किसी का बच्चे तूफानी है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में है. तो इसलिए जब सबकी लाइफ में तो हमारी लाइफ में भी हो सकता है. सेकेंड इज दैट in that whole event, what is a learning for me? कुछ अगर unpalatable हो रहा है, which I don't like, but what is there to learn? तो learning attitude लेकर आते हैं ना, तो उस चीज़ को झेलना आसान हो जाता है. Like there was one lady, उसका पति सनकी है, loud, screaming, ऐसा. But she has become very nice devotee. She said, actually I want to give credit to my husband. अगर मेरा husband बहुत अच्छा होता है ना, मेरा भगवान में मन नहीं लगता. मेरा भगवान में मन लगता है कि मैं देख लिया ये नकली पति है, असली पति तो प्रभु ही है. तो इन अ वे दिस इज गुड. सो कहीं ना कहीं पेन ज़रूरी है. पेन होता है तो हम इलाज कराते हैं. जैसे मान लो किसी के यहाँ कट लग जाए और उसको पेन हो ही नहीं रहा, ठीक है, खून बहता रहे, मर जाएगा वो. यहाँ दर्द होना अच्छा है, दर्द होगा फिर मैं उसका इलाज करूँगा, राइट. तो इसलिए वी शुड सी द पेन लाइक दैट. उस तरह उस एटीट्यूड के साथ उसको देखना चाहिए, ठीक है. साथ ही ना किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम जो है उसको मैनेज तब तक नहीं कर पाते जब तक आप उसमें अटैच्ड होते हो. डिटैचमेंट आपको शक्ति देती है कि आप उसको मैनेज कर सको. आपने कभी हलवा बनाया लाइफ में? तो हलवा हम कैसे बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर खड़े होके या कढ़ाई के बाहर खड़े होके? बाहर खड़े होके. अगर आप कढ़ाई में खड़े होकर हलवा बनाएंगे तो आप खुद ही हलवा हो जाओगे, राइट. तो इसलिए हमें कढ़ाई के बाहर खड़ा होना चाहिए. देन वी कैन मेक अ नाइस पुडिंग. सिमिलरली लाइफ में भी अगर आप मन के कढ़ाई में खड़े होकर के हलवा बनाओगे ना, आप खुद हलवा हो जाओगे. तो इसलिए आपको
बाहर खड़ा होना होता है. दैट मीन्स वी हैव टू ब्रिंग सेंस ऑफ डिटैचमेंट. यानी अगर लाइफ में कभी दुख हो तो कहना वेल आज मैं तो दुखी नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि मेरा मन को वो चाहिए था ना, वो मिला ही नहीं. आज मेरी ईगो बहुत दुखी हो रखी है, रिस्पेक्ट नहीं मिली ना, हाँ बेइज्जती हो गई. किसी ने बोल दिया अरे चुड़ैल कहीं की है. मेरी ईगो आज बहुत दुखी हो रही है. ईगो मैडम दुखी हो आज, इंसल्ट हुई है. हाँ हुई है. ओह सो सॉरी, आई अंडरस्टैंड. सो by detaching yourself from your mind, from your ego, then you can manage them. पर अगर आप उन्हीं में खड़े होकर उनसे आइडेंटिफाई करोगे तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे. फिर अभी कहते रहोगे मेरे साथ देखो ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ. नहीं 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 नहीं, मेरे मन के साथ हुआ. एक्चुअली मैं तो सोल हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ, इसके साथ हुआ है. ईगो, हाँ ओह सॉरी, आई अंडरस्टैंड. देन यू कैन मैनेज इट, देन यू कैन काउंसल इट, राइट. Then you can educate it. Otherwise नहीं कर सकते हम. I know that it is my karma. हमने किसी के पेच कसे होंगे, आज हमारे पेच कस कोई कस रहा है, ठीक है, तो भी कर्मा है. But ultimately this bad karma gives me detachment so that I can be attached to God. So thank you. Nice. So with this attitude हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, right? ठीक है जी. या हाँ जी, कहाँ पहुँचा माइक? हाँ जी सर. अच्छा क्वेश्चन. हाँ जी हाँ जी. यू टोल्ड दैट हमारा जो अभी पेरेंट्स है, कोई बच्चा भगवत गीता पढ़ने के लिए जाएगा, हाँ, कि स्पिरिचुअल क्लास जाता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बच्चा तो सन्यास हो जाएगा, हाँ, तो हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, ये एक क्वेश्चन होता है. और एक बच्चा बोलता है पापा मैं मांस मछली छोड़ देना चाहता हूँ, हाँ, मैं वेजिटेरियन होना चाहता हूँ. या पिताजी माताजी बोलेंगे वो तुम दुर्बल हो जाएगा, तू रोगी हो जाएगा. हाँ. तो ये दो क्वेश्चन मेरे को बार बार आता है कि बच्चा लोग चाहते हैं अच्छा होने के लिए, यस, पर पेरेंट्स ही नहीं होने दे रहे. पेरेंट नहीं होने देते. हाँ. जैसे कि बच्चा को स्पिरिचुअल क्लास में जाने से, या कि भगवत क्लास जाने से फिर साधु हो जाएगा वो साधु हो जाएगा. हाँ, साधु होता नहीं है. साधु इन द सेंस हमारे ऐसे साधु नहीं होगा वो. इवन इस्कॉन के अंदर भी गृहस्था कितने हैं? 99.99% लोग अगृहस्था. हमारे से ब्रह्मचारी कितने लोग? 0.0001%. दैट्स इट. तो इक्का दुक्का कोई बन जाता है, अदरवाइज वैसे साधु को बनता नहीं है. हो सकता है वो गृहस्थाश्रम में साधु रहे, मतलब पत्नी बच्चा वाला साधु, गृहस्थ वाला साधु हो जाएगा. पर सोचे फिर वो घर बार छोड़ देगा. पहले बात तो सबका इतना दम होता नहीं घर छोड़ दें, इसके लिए दम चाहिए होता है इसके लिए. तो इसलिए घर में रह करके ज़्यादा लोग भक्ति कर सकते हैं. और होता क्या है, व्हेन वी डू नॉट गिव वैल्यूज टू आवर चिल्ड्रन, यही बच्चे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेजते हैं. फिर कहते हैं ये बूढ़े माँ को भेजो यार. और क्या, क्यों मोनिका, लव यू बेबी. फिर मोनिका बोलती है कि नो ये बूढ़े बड़ंचर लोग घर में ऐसे रहते हैं, वी नीड सम प्राइवेसी डार्लिंग. आई लव यू डार्लिंग. आई भेजता हूँ इनको वृद्धाश्रम. देख माता पिताजी वृद्धाश्रम बोलो आप. मेरी मोनिका को बिल्कुल पसंद नहीं है ये आप लोग ना घर में क्या क्या को करो. राइट बेबी, लव यू. चलो हमने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया और तू हमको वृद्धाश्रम भेज रहा है. क्या आपने हमें वैल्यूज ही नहीं सिखाई, भुगतो. तो यही पेरेंट्स से बाद में दुख पाते हैं उन बच्चों से. फिर तो इससे दे शुड एनकरेज. बाकी नॉन वेज खा के मैं तो दैट मीन्स पेरेंट्स को ना न्यूट्रिशन को पता नहीं है. इवन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की देयर इज वन डॉक्यूमेंट्री, I forgot the name of the documentary. He said, I was mistaken that by eating meat we make muscles. I am Arnold Schwarzenegger. I am telling you, by eating vegetarian food you make better muscles. ये वो बंदा बोल रहा है इसने मसल्स बनाए हैं, टर्मिनेटर वाला, प्रीडेटर वाला. Arnold Schwarzenegger is saying that. So vegetarian foods आपके ज़्यादा अच्छे मसल बनते हैं. जॉन इब्राहिम सब जानते हैं, जिसके यहाँ बिस्किट्स हैं, जानते हैं. जॉन इब्राहिम इज वेजिटेरियन. तो यानी इन लोगों को अक्ल ही नहीं है पेरेंट्स को इनको कि ऐसी शक्ति किससे मिलती है? वेजिटेरियन फूड से शक्ति मिलती है. यस, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट कैन गिव यू मसल्स, इट कैन गिव यू बिस्किट्स. अगर आपको केक नहीं चाहिए, केक तो सबका निकला ही हुआ है, पर केक की जगह आपको बिस्किट चाहिए. वेजिटेरियन फूड इज मोर फेवरेबल फॉर मेकिंग बिस्किट्स. यस, बल्कि अल्टीमेटली नॉन वेज खा के केक निकलता है. पहले प्रीपेड था, अभी पोस्ट पेड कनेक्शन उनका.
Thank you. Thank you जी. Okay. In America, I have seen the parents they take the children 100 kilometers to attend the Gita class. But in India, हमारे बगल में गीता क्लास है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे. क्योंकि हाँ. मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, चला जाएगा, सन्यास हो जाएगा. क्योंकि वो लोग दे लाइक गीता, वी लाइक सेन्योरिटा. That's why. हरे कृष्णा. मेरा ये सवाल था कि कृष्ण कहते हैं कि धर्म सबसे बड़ा चीज है, हाँ. तो धर्म क्या प्रेम से ही बड़ा है? ये प्रेम बताओ, प्रेम क्या चीज है? प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रकृति से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, लड़की से? नहीं, बिल्कुल। ओए ओए. कृष्ण से बढ़ के प्रेम कोई नहीं। ठीक है. अच्छा ठीक है. तो प्रेम बड़ा है कि धर्म बड़ा है? ठीक. पहले तो प्रेम डिफाइन करना चाहिए हमें. ऐसे अगर आप धर्म का पालन करोगे ना तो आप सबसे प्रेम कर पाओगे. Those who follow dharma, they even have gratitude for country, they have gratitude for parents, they are dutiful to life partner, dutiful to children, because they follow dharma. Dharma means to love God. Dharma means to love God. When we love God, we love all of His creatures. चाहे वो parents हो, friends हो, life partner हो, anyone, even enemies. We love everyone. Why? Because we see everyone is वासुदेव कुटुंबकम. ये भगवान वासुदेव के कुटुंब के पार्ट है ऐसा. So that's why by following dharma, that means by loving God, we naturally have compassion and love for everyone. जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मेरे को तो INET राउल करने को पैसा तो दिया नहीं कि अमोगलीला जी सेशन का. Usually when I go to colleges or corporates, I take some Lakshmi, 5 lakh rupees to 10 lakh rupees. Why? Because मेरे को मंदिर बनाना है रुक्मिणी द्वारकाधीश का. बट आई हैव कम हियर, मैंने 5 रुपये भी नहीं लिए, राइट? तो मैं यहाँ पर क्यों आया? बिकॉज आई एम इन लव विद गॉड. आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ कोर्स, बट वेन वी हैव लव फॉर गॉड, देन वी हैव मोर कंपैशन फॉर अदर्स. सो दैट्स व्हाई धर्मा इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट लीड्स टू लव फॉर एवरीवन. ठीक है जी. हाँ, और अगला सवाल. Hare Krishna. It's a great honor to have you here. Thank you. My question is that how to live a simple life like you? How to be happy? जैसे जितनी टेंशन होती है, हाँ, 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 हाँ. माइंड इधर-उधर भागता है. Yeah. उसको कैसे छोड़ के फिर simple You know, you become simple by associating with those who are simple. अगर आप कॉम्प्लिकेटेड लोगों का संग करोगे ना, आप भी कॉम्प्लिकेट हो जाओगे. सरल लोगों का संग करो, आप भी सरल हो जाओगे. आप कहीं टेढ़े मेढ़े जा रहे होंगे, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, चिल, इट्स ओके. So associate with simple-minded people. Especially now being student, we should have lifestyle of minimalistic living. कम से कम में जीना शुरू करें हम लोग. जितना कम से कम में जीना शुरू करोगे ना, आपका फोकस अच्छा होगा. इस आप देखो, जितने गरीब घर के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, जितने रिच घर के बच्चे होते हैं पढ़ाई नहीं करते, बिकॉज दे डोंट लिव इन मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड. मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड किसका है? मिडिल क्लास का बच्चा है ना, कहते हैं नहीं यहाँ घर में ना इनकम बड़ी लिमिटेड है, इसी में करना है, इसी में करना. एंड दैट मेक्स योर लाइफ मोर सिंप्लीफाइड बिकॉज यू लिमिट योर डिजायर्स. रिच क्लास अमीर आदमी हो तो लफंटरबाजी, किसको लाइन मारना, किसको स्क्वायर मारना, किसको सर्कल, किसको हाइपरबोला, किसको पैराबोला. सिंपल. हाँ हाँ जी. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा बेटा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब भक्ति में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति मन से होता है, दिखावा से नहीं. तो ऐसे हम लोग को वैसे भी बोलते हैं, अगर हम जाए कहीं इस्कॉन जाए कि कोई भी मंदिर जाए तो हम लोग को बोलते हैं तुम क्या भक्ति कर रहे हो, तुम तो दिखावा क्या भक्ति कर रहे हो, अंदर क्या है तुम्हारा क्या पता, तुम लोग मंदिर क्यों जाते हो. तो इसको मैं क्या उन लोगों को क्या उत्तर करना चाहिए? बहुत वेरी नाइस. उनसे कहा तुम खाना खाते हो? कहा हाँ. तुम क्या खाते हो? क्योंकि मैं राजमा चावल. क्या तुम मन से खाया करो कि दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी होगी? हाँ शादी करूंगा. कहता मन से शादी करना, ये क्या 7 फेरे और ये ऑल दैट ना, मन में करो. 7 फेरे हो गए, ऐसा कर लिया करो, ठीक है. तो बाकी काम हम फिजिकल करेंगे, वो सिर्फ मन में करेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. इवन फॉर डिग्री वी गो टू एन इंस्टीट्यूशन.
वहाँ हम टीचर से मिलते हैं, डाउट दूर करते हैं. सो फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो वी गो टू इंस्टीट्यूशन, वी गो टू टेम्पल. वहाँ जाएंगे, डाउट्स दूर करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ क्वेरीज करेंगे. दैट्स वाई कहते हो जो लॉजिक तुम लाइफ में लगाते हो वही लॉजिक तो यहाँ भी लग रहा है. राइट? हम सारे काम मन में थोड़ी ना कर लेते हैं. प्यास लगी, कहता है मन में पानी पी ले. ऐसे प्यास नहीं, अरे मन में पानी, दिखावा कर रहा है तू. गिलास हाथ में लिया, पानी पीना दिखावा है तो. जितनी लेडीज हम मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग भरती हैं, ऐ दिखावा कर रही है तो बड़ी ब्याता है. मन में होना चाहिए प्यार हस्बैंड के लिए. ये क्या मंगलसूत्र और मांग भरना एंड ऑल दैट. तो लड़की क्या बोलेगी, यार देखिए मैं मंगलसूत्र इससे पहनती हूँ ये बताने के लिए कि आई एम मैरिड, आई बिलोंग टू समवन, इसलिए हमने गिद्ध जैसी आंखें मेरे पे मत लगाओ. राइट? सो व्हेन somebody is wearing मंगलसूत्र and feeling the parting of the hair, it's an expression, it's a message. Similarly, when somebody becomes a devotee और चैंटिंग करता है, it's an expression that I belong to God. जैसे वो तिलक लगाता है, वो बोले इतना तुम 2 किलोमीटर लंबा तिलक क्यों लगाते हो, ऐसे छोटा सा लगाओ 1 मिलीमीटर वाला है नहीं. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट ओ लॉर्ड आई बिलोंग टू यू, माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ योर्स. सो इट्स एन एक्सप्रेशन. तो बाकी काम में एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ नहीं. हाँ तो भाई तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है. एक्सप्रेशन. लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव. लव हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. जैसा कि माँ कोई बच्चे को बोले बेटा मैं थकी आई हूँ बाजार से, थोड़ा पाँव दबा देगा बेटा. और बच्चा बोले माँ काम चोर गए कि अपने पाँव खुद दबा. माँ बोले क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करता मेरे बच्चे. कहते माँ दिल में बहुत प्यार है. माँ कहीं दूर फिट्टे हूँ तेरा प्यार का, मैं क्या कूड़ा हो जाऊँ मैं. क्यों, मन में प्यार है ना माँ. कहते मैं क्या करूँ तेरे मन के प्यार का. तो अगर प्यार है तो इट शुड बी एक्सप्रेस्ड ऑल्सो. ठीक है जी. सो व्हेन वी हैव गॉट लव फॉर गॉड वी ऑल्सो एक्सप्रेस इट. या One last question, if anybody has. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे को लाइक मेरे ठाकुर जी के बारे में कोई कमेंट किया, हाँ जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ. क्या बोला उसने. तो मुझे बहुत गुस्सा आया. हाँ. एंड मैंने कोशिश किया सबके सामने एक्सपोज करने के लिए उसका माइंड कैसा कितना ज्यादा टॉक्सिक है. सर एंड मैं वही चीज में अपने आप में सोचते सोचते मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. ऐसा लगा था कि मैं बदला लूंगा. लेकिन सर मैंने चैंटिंग किया. हाँ. एंड मैंने फाइंड आउट किया कि थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा शांत हो गया. हाँ. एंड मैंने उसको एज अ नॉलेजेबल नहीं या फिर फुलिश एक्शंस के वजह से वो ऐसा मेरे को बोला, समझ के मैं चुप रह गया. लेकिन सर जो मेरे ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोलेगा. क्या बोला उसने. सर एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे. बोलो. हाँ और क्या, कोई फालतू बात ही होगी. दैट्स ओके. सर हमारे जो राम मंदिर है, हाँ. तो उसको वो बाबरी मंदिर करके संबोधित किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया सर. तो क्या हो गया, राम मंदिर ही रहेगा. सर चैंटिंग करके मुझे पावर. तो उसको बोल दे ये तो कैथेड्रल चर्च है, तो फिर हम बुरा मान जाएंगे. ऐसे कुछ भी, कोई जैसे NIT राव के लोग बोलते हैं ये तो एम्स है, फिर हम बुरा मान जाएंगे. सुंदर कुछ भी जगह वो आपको बोल दे कुंभकर्ण, तू अलकायदा से है, हिजबुल मुजाहिदीन है. नहीं मैं नहीं हूं. सिंपल, दैट्स इट. वो ऐसे बोले हे मनीषा कोइराला, मैं तो नहीं हूं. सिंपल. तो कोई कुछ भी बोलता ना था, अरे हु इज ही टू सर्टिफाई. पूरी दुनिया बोल रही है राम मंदिर, उसको बोल दे बाबरी मंदिर, हम उसमें अपना BP शुगर ऊपर नीचे कर लेंगे. या तू रहे कोई बात नहीं. कुछ लोगों को होता है बेचारों को दिमाग से बेचारे मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, मानसिक रूप से बीमार लोगों को लेकर दिल की कंटिन्यू. थोड़ा चिल आउट मारो लाइफ के अंदर. कौन लोग हैं ये, छिछोरे लोग हैं ये, इग्नोर देम, दैट्स इट. तो इसलिए इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए छोटी छोटी बात को. सर एक्चुअली प्रॉब्लम तब आ रही थी जब मैंने चैंटिंग किया तो मैं शांत हो गया. हाँ तो अच्छी बात है, शांत हो गए, लेकिन उससे पहले शांत हो जाना चाहिए था. चैंटिंग से पहले शांत हो जाना चाहिए था आपको. और क्या, कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं. और क्या है, तो एक व्यक्ति ने उसे वीडियो बनाया है, त्रिशूल लिया हुआ उसने हाथ में, कहते वो साला अमोघ लीला जिस दिन मिल गया ना घुसा दूंगा उसके पेट के अंदर. तो मैं दुखी हो जाऊँ इसमें. अब हाँ तू बनाते रहे बेटा वीडियो, जो मिलूंगा तो तू घुसाएगा ना मेरे अंदर.
तो लोग दुनिया में कुछ भी बोलते रहते हैं, इट्स ओके, चिल मारो, और क्या नहीं तो। और यस, लास्ट क्वेश्चन है। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। My question is how to kill procrastination and overthinking. ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन कल करेंगे। हम काम कब करेंगे? कल, क्योंकि हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। अगर हमारे युग का नाम होता आज युग, फिर मैं आज करता, लेकिन हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो हम काम कब करेंगे? कल। आज आधे पिक्चर देखेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है अटैचमेंट टू कंफर्ट जोन। जितना आप कंफर्ट जोन से अटैच रहेंगे तो आप जो करना है उसको कल करते रहेंगे, कल करते हैं, थोड़ा बाद में करते हैं, बाद में करते हैं ना। हर चीज़ को पहले होता है वी शुड एलोकेट टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन वॉचिंग समथिंग जंक ऑन यूट्यूब और से इंस्टाग्राम रील्स, एलोकेट अ टाइम। कहते हाँ जी मैं करूँगा, शाम को 6 से 6:30 मैं फालतू काम करूँगा। जाए 6 बजे शुरू हो जाए फालतू काम करना, 6 से 6:30। पर इन केस यू डू नॉट एलोकेट टाइम टू जंक एक्टिविटी, दैट जंक एक्टिविटी विल टेक एंटायर डे। अब यूट्यूब शॉर्ट्स में बिता दिया आपने 6 घंटे, अरे यार सारा दिन गया है। तो सो इवन टू जंक एक्टिविटी वी शुड एलोकेट सम टाइम, ठीक है ना, देन विल यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। साथ ही जो करना है ना वी शुड एलोकेट, उसको भी टाइम देना चाहिए, साथ ही उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यू शुड हैव समवन टू हुम यू रिपोर्ट। और अगर हमने वो काम पूरा नहीं किया, उस व्यक्ति को पूरा अधिकार दो कि आपको 2 चपेट मारे खिंचा के, अपने आप काम पूरा करोगे आप। नहीं तो नहीं हुआ ना, उसके बाद जाकर भाई मेरे काम पूरा नहीं हुआ, 2 लगा दिया। आज करना चाहिए, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती, ठीक है जी। साथ ही क्रिएट द एनवायरमेंट टू डू थिंग्स। जैसे इवन पढ़ाई भी करनी है ना, अगर पढ़ाई करने का एनवायरमेंट नहीं है आप पढ़ नहीं पाओगे। जैसा अगर घर में मान लो वेरेवर यू स्टे, वहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, आप पढ़ पाओगे? वहाँ पर नहीं कर पाओगे। सो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण ये भी है बिकॉज एनवायरमेंट ही नहीं बनाते हम लोग। जो चीज़ हमें करनी है, स्टडी करनी है, उसका एनवायरमेंट बनाना चाहिए। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। वो करो, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती। साथ ही वी शुड एजुकेट द माइंड, एज आई वाज मेंशनिंग, कि नहीं ये काम मेरे को अभी करना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं लेकिन खुद को शिक्षा नहीं देते। सो वी शुड ऑल्सो एजुकेट आवर ओन माइंड्स। ओ माई रास्कल माइंड, दिस ऑट टू बी डन एंड वी आर डूइंग दैट। एनीथिंग विच इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे ये फोन है, इसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। सो अगर पढ़ाई करनी है, स्टेप 1 किताब लेके खोलना है। सही की गलत? कौन मानता है इस बात को? पढ़ाई करनी है तो स्टेप 1 इज टू टेक अ बुक एंड ओपन इट। रॉन्ग। स्टेप 1, टेक मोबाइल फोन, पुट इट अलमारी के ऊपर। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 है किताब खोलना। इसको अप्सरा को साथ में रह करके अपना पढ़ाई नहीं होती। कोई ऐसा सोचो साधु महात्मा हो, साथ में बैठे अप्सरा को लेकर के, अप्सरा बगल में, हो गया काम। तो इसीलिए अप्सरा को डिस्टेंस, तो इसलिए पहले इसको अलमारी की छत पे डाल दो साइलेंट करके, तो ये बचता रहेगा, फिर आपका बन जाएगा उस और ना फिर पढ़ना है स्टे। सो देन यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। सो ऑल दोज थिंग्स विच क्रिएट कंफर्ट जोन, दफा करो उनको, देन यू विल कम टू रियलिटी स्टे, ठीक है। तो इस तरह से यू विल स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड एलोकेट टाइम, एलोकेट करना टू योर डूज, जो कि आपकी एक्चुअल एक्टिविटी है, प्लस इवन जंक एक्टिविटी को भी टाइम एलोकेट करना चाहिए। नहीं तो जंक एक्टिविटी कहेंगे हे मैं भी तो हूँ, हाँ बहन जी आप हो, पर शाम को 6 बजे हो, है बेटा। देखो ओवर थिंकिंग अगर भगवान को लेके है तो बहुत ओवर थिंकिंग वरदान है आपके लिए, पर अगर ओवर थिंकिंग नेगेटिव चीज़ों को लेकर के है देन दैट्स नॉट गुड। तो अगर ओवर थिंकिंग हो तो क्या करना चाहिए फिर? ओवर थिंकिंग को पोस्टपोन करना चाहिए, मना मत करो उसको, पोस्टपोन।
मतलब कोई चीज़ नेगेटिव आ रहा है बार 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 बार, मेरी ऐसी इंसल्ट हुई, इट वॉज सो इनजस्टिस, बार बार आ रहा है, और वो रिपीट टेलीकास्ट चले जा रहा है 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 चले जा रहा है, ऐसा होता है ना। एक ही चीज़, एक ही इवेंट ना रिपीट टेलीकास्ट में आता है वो, और आपके घंटों घंटों वेस्ट होता है, बैठे बैठे कुड़ते रहते हो, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, साले कुत्ते कहीं के, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, कुत्ते कहीं के, कीड़े पड़े ऐसे लोगों को, कुत्ते कहीं के। अब माइंड उसी में फंस गया, वो लूप में आ गया, वो डुंग 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 डुंग, उसको फिर बोलते हैं ओवर थिंकिंग, राइट। तो इससे माइंड को बोलना चाहिए, माइंड तेरे को नेगेटिव थिंकिंग पसंद है? हाँ। रिपीट टेलीकास्ट पसंद है? हाँ, ठीक है, करेंगे, मेरे को भी पसंद है, करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना एक माला जप कर लेते हैं भगवान के नाम की, फिर करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, भगवान का नाम थोड़ा लिया, तो बीच में वो फिर वो एक माला को बोले, हे तूने बोला था थोड़ा सा नाम लोगे फिर मेरे को करोगे, अरे हाँ, एक माला की बात करता हूँ, पोस्टपोन 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 करने से धीरे धीरे करके वो डिफ्यूज हो जाता है। जैसे पति लोग पत्नियों को कैसे घुमाते हैं, पत्नी बोलती है तुमने शादी को मुझे एक नेकलेस नहीं ला के दिया, कहता अरे भाई भगवान अगले महीने की सैलरी से तुमको हम नेकलेस ही ला के देंगे। अगला महीना आ गया, हे नेकलेस, वो क्या LIC का प्रीमियम भरना पड़ गया ना इस बार, इसलिए अगला महीना नेकलेस। फिर अगले महीने फिर वाइफ बोलेगी, हे सुनो तुमने बोला था नेकलेस ला के दोगे, कहता है ये बच्चों की फीस चलेगी ना इस बार, इसलिए अगले महीने। 3-4 महीने बाद वाइफ भी भूल जाती है उसको नेकलेस चाहिए था। ऐसे माइंड भी क्या है, वो पत्नी जैसा ही है, उसको ऐसे घुमाना है। कहता है अरे सर नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, तुमको ही पसंद है, हमको ही पसंद है, लेकिन भगवान के नाम की एक माला के बाद, ठीक है। बीच में मेरे को दिक्कत मत करना, एक माला की बात करेंगे। वैसे भगवान का नाम लेने के बाद मन नेगेटिव थिंकिंग मर जाती है वैसे तो, मान लो फिर भी आ गए मैं नेगेटिव थिंकिंग, मैं अभी भी बची हूँ थोड़ी सी, कोई बात नहीं, तेरे को बाकी मैं मारता हूँ अभी थोड़ा। तो ऐसे करके पोस्टपोन कर करके उसको ठस कर दो। जैसे लॉन टेनिस देखा हमने, लॉन टेनिस में अगर पहली सर्व अगर नेट से टकरा जाती ना, तो अगली सर्विस में इंटेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि अगली बार फोकस की ये होता है कि बॉल नेट के ऊपर से निकल जाए। दूसरी बार भी नेट से टकरा गई तो बेइज्जती हो जाएगी, भाई तेरे को टेनिस नहीं खेलना तो गजा गिल्ली डंडा खेल। तो सेकंड टाइम में इंटेंसिटी कम होती है, राइट। तो इसीलिए उस तरह से जितना हम उसको पोस्टपोन करते हैं ना, तो नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम होती जाती है सेकंड सर्व में। तो इसलिए इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। साथ ही क्या, वी शुड हैव मोर पॉजिटिव मेमोरीज। पुरानी हमारी नेगेटिव मेमोरीज हैं, हम आज कुछ पॉजिटिव मेमोरीज बना रहे हैं क्या? नहीं, हम पास्ट की भी इतना ड्वेल करते रहते हैं, दैट लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। जैसे ना किसी के हाथ जख्म हो जाए, बार बार उसमें उंगली मारता रहा अगर कोई व्यक्ति, देखे ना यहाँ ब्लड जमा जाता है, फिर आप उसमें क्या करते, उंगली मारते रहते हो इससे, फिर क्या होता है, वहां से फिर से खून निकल आता है, हो फिर से खून निकल आया, फिर थोड़े समय बाद वहां जम गया खून, फिर उंगली मारी वहां पर, अच्छा लगता है ऐसे, फिर उसको क्रीन का मलीदा निकालेंगे तो जख्म ठीक होगा? नहीं होगा। जख्म कैसे ठीक होता है? इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें उंगली नहीं मारनी चाहिए बार बार। उंगली नहीं मारते तो धीरे धीरे करके जख्म ठीक हो जाता है। इस तरह से कुछ लोगों ने हमारे यहाँ भी जख्म दिए हमको, हम बार बार उसमें उंगली मारते रहते हैं, मेरे साथ कितना गंदा हुआ, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, तो फिर से वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर अकेले जब भी उस बारे में सोचता हूँ, इट गिव्स मी सो मच पेन। तेरे को उंगल मारने को किसने बोला था वहां पर? क्यों मारी वहां पर उंगल फिर से? कहते वो अच्छा लगता है ऐसे उंगली मार मार के अपनी ऐसी, कहता है छोड़ दे उसको। कृष्णा एज टाइम, कृष्णा सेज कालो अस्मि, आई एम टाइम, सो ही हील्स इट, प्रोवाइड हम उसमें उंगली ना मारे, यानी कि उसने बार बार सोचे ना क्यों क्यों क्यों, इसको कोई जवाब नहीं है इस क्यों का, एक ही है लॉ ऑफ कर्मा, बढ़ो आगे, पर उसमें बार बार उंगली मारते रहेंगे ना, तो जख्म जो है फिर हरा रहता है, वो ठीक नहीं होता।
So in case you want our wounds to get healed, उसमें उंगली नहीं देनी चाहिए, बाबा खरोचना नहीं चाहिए उसको, किसने क्या बोला था, इंसल्ट की थी, अपमान हुआ था, फला डिमका ये वो, अरे लेट्स फोकस ऑन प्रेजेंट, आज मुझे ये करना है, उसको पोस्टपोन करेंगे, कहते हैं सोचेंगे नेगेटिव थिंकिंग को, अभी हम ये करेंगे, ऐसे करते करते क्या वो वुंड हील हो जाता है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, पर बार बार उस पर ड्वेल करेंगे तो वो हरा होता रहेगा, ठीक है, या ओके, आई थिंक टाइम इज अप, बड़ा धन्यवाद सबका, हरे कृष्णा। Thank you very much, sir. Many of you, please be seated. Just 2 minutes more. So, many of you might be having questions. जैसे कि बहुत सारे और भी questions थे. So, evening also we have a session, password for happiness. So, if you want to know more about the mind, more about the happiness, so please come in the evening session. And also, sir has a YouTube channel, My Ashray. So, if you want to follow him, want to know more about different subject matters, he has already spoken a lot there. Also, he has a course which is spirituality for modern age, and more than lakh students have already been benefited by that course. So, he has been guiding through those courses students to the perfection. So, thank you very much. We are grateful for your insightful speech, sir. Continuing our expressions of gratitude, we now extend heartfelt thanks to Amok Leela ji, and I request HUSICS to present a small token of appreciation to our guest of honor. Please, sir. All the students and faculties are requested to sit down. The school students need to